थैंक यू सो मच शार्दुल, आपने हमारे शो पर आकर बहुत 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 अच्छा काम किया, क्योंकि हम काफी टाइम से आपका इंटरव्यू करना चाहते थे। आफ्टर योर जर्नी इन अ रियलिटी शो हमें ये समझ में आया कि आपके साथ बात करने से हम काफी लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं इन डीलिंग विद सिचुएशंस, एंड हाउ आपने किस तरह ये जर्नी को पूरी तरह से डील करके एक ब्राइट फेस में कन्वर्ट किया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ शार्दुल कि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी? See, I definitely believe in spirituality, and I think anybody who has gone through any kind of ups and downs in their life or struggles will definitely turn towards spirituality, because there's a lot more जो अभी तक हमें पता नहीं है. I mean, science can only give that much of explanation, but कई बार लोग बोलते कि अरे everything is science, this is all hogwash and all. But then I always tell them that it's all an individual experience, and till the time you don't get that, you will know that you don't get that calling, you wouldn't know. And I think मेरे केस में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, and I'm like even today. When I'm talking to you, I was almost about to cancel it because my mother is in a very critical state and she's right now hospitalized. And doctors kitna hi kuch kar sakte hain. The only thing that I can probably at this point of time is turn towards our prayers and spirituality. So yes, I definitely believe in spirituality. Okay. आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का जो मीनिंग है उससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप बिलीव्स में भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि किस तरह हम बिलीव करते हैं और वो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि डेली जो हम अपने साथ प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बिलीफ सिस्टम होता है हमारा, आपको ऐसा लगता है कि रोज जो हम सोचते हैं क्या वो क्रिएट होता है? ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिट कुछ साल पहले बहुत पॉपुलर हुआ था. आई एक्चुअली यूज्ड टू यूज इट. मैं 110 किलो का मोटा लड़का था who lost weight. I used to stammer and then I became a Limca record holder. I had squint in my eyes which I could correct. So to an extent I believed in it. But also I believe in karma. I also believe in whatever is meant to happen will happen. So, मैं कोई expert नहीं हूँ. You're the expert. You probably will be able to tell. What my belief is that दोनों का 50-50% है. It's not like कि अगर मैं रोज सोचने लग जाऊँ कि मैं शाहरुख खान बन जाऊँगा तो मैं कल शाहरुख खान बन जाऊँगा. There's also a destiny attached to it. There's also karma attached to it. So जो लोग practice करते हैं वो बहुत black and white practice करते हैं. But I believe there's a lot of gray. Which obviously when you age you come to know. It's like yes, there have been instances with me where I have looked at a computer and said आज मुझे 11,000 messages आएंगे शो में और मुझे 11,542 messages आए. या मैंने कहा कि मुझे अगले हफ्ते 3.5 लाख रुपए कहीं से भी आएंगे and it came. But then also like obviously right now I'm only praying कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए, but like every night I am visualizing or doing that. But there's I mean I believe there's 50% to what you think and 50% to what you're meant, because sometimes you can have great thoughts and great this thing, but your destiny might not be it. Sometimes your destiny is very great but your thoughts are not aligning with it. So I believe there's a 50-50% to it, and I'm still learning, and that's the reason I'm talking to you. So I don't know absolute black and white of it. ओके, बिकॉज आपका जो ओपिनियन है वो बहुत ही प्रैक्टिकल और नेचुरल है, क्योंकि हमेशा ही डेस्टिनी वर्क करे या हमेशा ही हमारे एफर्ट्स वर्क करें ऐसा जनरली नहीं देखा गया. इट इज अ ब्लेंड ऑफ टू डेफिनेटली, एंड इट ओनली मैनिफेस्ट बिकॉज अगर कभी-कभी हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं फिर भी हमारे एक्शंस के साथ में रिजल्ट्स ओरिएंटेशन सेम नहीं होती है. वी डू गेट इट. या आई कंप्लीटली एग्री. लाइक इन माय केस दिस हैज हैपेंड अ लॉट दैट रेडियो, जैसे कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपकी आवाज से यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने कभी ट्राई नहीं भी करता हूं तो भी रेडियो कम्स बैक टू मी. समटाइम्स आई सेड नो आल्सो एंड इट कम्स बैक टू मी. सो दैट इज माय डेस्टिनी. आई लेफ्ट मुंबई थिंकिंग दैट अब मैं कभी शायद टीवी में नहीं आऊंगा, एक्टिंग नहीं करूंगा. मैं जिस दिन पहुंचा इंदौर मुझे बिग बॉस का कॉल आया. यस, it didn't go great for me, but then again that's destiny. So yes, I've seen destiny play its game a lot of times with me. Yeah, and that shows because आपकी जर्नी में अप एंड डाउन जो आते हैं, हम तो शायद अपने बारे में सब कुछ बहुत पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट जो बीच में रोड मैप्स आते हैं, बट डू यू थिंक दीज रोड मैप्स अगर आपके पास से हम अभी तक रिलेट करें, आपको ऐसा लगता है जो डाउनफॉल्स आए, जो बैड टाइम्स आए,
कुछ टीचिंग्स या लेसन्स के लिए आए which made you grow as on a human level? देखिए, टीचिंग और लेसन आप हर चीज से लेते हैं. इनफैक्ट दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. लाइक आप अगर ट्रैफिक सिग्नल पे जा रहे हो और अगर आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है तो भी आप ये सीख जाते हैं कि मुझे इधर उधर देखते हुए जाना है. सो आई थिंक लर्निंग एंड टीचिंग हैपेंस एवरीवेयर. What you take out of it or what you make out of it is totally up to you. हालांकि जब आप डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे होते हैं तब टीचिंग और लेसन और सफरिंग समझ में आती नहीं कि क्यों हो रहा है. Like again, like right now I don't know why my mom is going through all of it. There might be some teaching, but right now मुझे वो समझ में नहीं आ रहा because I'm in it. When you're out of it or when you're looking it from the top, you probably understand. So yeah, I mean, as humans we can only try. Absolutely. Okay, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आप meditations या चक्रा बैलेंसिंग ऐसी डेली एक्टिविटीज में कुछ करते हैं जिससे आप अपने टफ टाइम्स को डील कर लेते हैं? नहीं, मैं करता था. इनफैक्ट मेरे साथ which people say occult का बड़ा ही weird नाता है. जब मैं दरवाजे बंद कर देता हूँ तो it tries to reach to me from every angle. और जब मैं उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ तो it becomes inactive. So it's like a girlfriend boyfriend relationship कि जब मैं भाव नहीं देता हूँ तो like for an example, once I think I was in Dubai when I was working in Dubai and I was a radio host and I was just walking on the JBR and there's this Pakistani clairvoyant who walked up to me saying that आप क्या please मेरे साथ 10 मिनट देंगे? And I was like why? And she's like your time of radio is over, you're going back to Bombay. And I'm like nahi. And I'd actually put in my papers at that time. She didn't know that. But then again or like very recently someone had told me that please save up, you might have some issues coming in, and my mother was hospitalized. So ये चीजों का मेरे साथ हुआ है. लेकिन एक टाइम था जब मैं हर चीज के बारे में बहुत क्यूरियस था. फॉर एन एग्जांपल, मैं चैंटिंग भी कर चुका हूँ, मैं ऑरा क्लेंजिंग भी करवा चुका हूँ, मैं इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्टेड था. लेकिन नाउ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट आई डोंट हैव द टाइम to think about all of these things because I have to take action. Sometimes you cannot indulge yourself a lot in all these things. अब जैसे मैं अपना काम खत्म कर रहा हूँ, उसके बीच में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसके बीच में मुझे मॉम से मतलब घर वालों से कोऑर्डिनेट करना अबाउट मॉम. आई डोंट हैव द टाइम राइट नाउ. इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनमें विश्वास नहीं रखता. इट्स जस्ट दैट राइट नाउ आई डोंट हैव माय डेली रूटीन्स में इन सब चीजों के लिए टाइम और द बैंडविड्थ. राइट. एंड ऑब्वियसली मतलब अगर मैं कहूँ तो शायद वो एक हीलर का काम होगा कि वो उसमें इतना घुसे. एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, मे बी हाफ एन आवर अ डे और 15-20 minutes a day you can give it to these things just to balance it out, and rest is action. The funny thing is every time I've gone to a healer they've said that you are a healer, so I don't know. Okay. मैं इस वक्त किसी को हील नहीं कर सकता because I firmly believe कि आप डॉक्टर तब बन सकते हैं जब आपने डॉक्टरी पढ़ी हो. आप पेंटर तब बन सकते हैं जब आपको पेंटिंग आती हो. आप सिंगर तब बन सकते हैं जब आप को सिंगिंग आती हो. तो ये चीज मुझे बहुत लोग बोलते हैं, बट मैं इसमें ज्यादा अभी तक घुसा नहीं हूँ. The only thing I believe in is energies. I genuinely believe in it because वो आप instantly feel करते हो. Yeah, I mean, I keep sitting and visualizing also. Sometimes it has happened, sometimes it has not happened. But daily meditation मैंने नहीं किया, हालांकि मुझे हर कोई बोलता है कि you should. ओके, बिकॉज आपने एनर्जीज की बात कही तो उससे रिलेटेबिलिटी है कि आप अगर कहीं भी हैं एंड इफ यू टोल्ड 10 पीपल कि ये शो आ रहा है मेरा या ये काम आ रहा है, instantly you connect a chord of someone maybe who doesn't want you there or maybe not wishing too well. वहीं से drain point start होता है. So energy वहाँ हम सब feel कर पाते हैं. That's a basic, very very naturally coming to each one of us as humans because we are made of energy. तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपने एनर्जी को इम्पोर्टेंस. डू यू बिलीव इन वाइब्स ऑफ पीपल एंड डू यू सेग्रीगेट पीपल एज सच कि मैं इनके साथ मिलूंगा, इनके साथ नहीं, एज पर द वाइब्स? या ऑनेस्टली ये कॉन्शियसली करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है हम लोगों को, बिकॉज आप नेचुरली ग्रेविटेट करते हो उन लोगों की तरफ जिनके साथ आपको अच्छा लगता है और जिनको आपके साथ अच्छा लगता है. दैट्स द मोस्ट बेसिक ह्यूमन थिंग. I mean, the biggest example is animals. Like, पहले मैं डॉग से डरता था जिस घर में रहता हूँ. उसके बाद जब मैं one fine day I just petted the dog and then the dog stopped barking at me. So it is just the vibes, it's like
आप किसी की आंखों में देखते हो और आपको लगता है कि हाँ इसके पास मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है, भले आप 5 मिनट पहले मिले हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल पवित्रा, मी एंड पवित्रा, लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू आस्क कि आप दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, आई वाज लाइक नहीं, हम जिंदगी में 4 बार मिले थे बिग बॉस से पहले, बट वी हैड अ बॉन्ड, यू नो, आई मीन एक अनस्पोकन बॉन्ड होता है, वो वाइब्स होती हैं आई थिंक। एंड आई थिंक वो जो कहावत है कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, वो बिल्कुल सही है। लाइक यू नो, देयर आर सम पीपल इन माय लाइफ हु हैव stuck by me in the worst times possible and I felt comfortable around them क्योंकि उनकी vibes मेरी vibe से match होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी की vibe अच्छी या गंदी है, जैसे a lot of people say that, I don't believe in that, I just think that आपकी मैच किससे होती है, इट्स लाइक बैटरीज का जैसे होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, या राइट। ऑल्सो अभी जो प्रेजेंट में बहुत ज्यादा चल रहा है दैट इज अबाउट सबकॉन्शियस ब्रेन प्लानिंग, एंड आप जो थॉट्स पास्ट से कैरी कर रहे हैं, आपने अगर पास्ट को लेट गो नहीं किया है तो फ्यूचर में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। डू यू बिलीव इन दीज थिंग्स? डू यू थिंक योर लेटिंग गो ऑफ पास्ट हेल्प्स यू टू मूव फॉरवर्ड, और यू कैन नॉट लेट गो ऑफ इट, इट इज नेचुरल? I mean, you're asking my opinion generic on it or my personal opinion on it? your experience on it, क्या आपने let go किया? because आपका एक फेज चला that was maybe नहीं, मैं उसके बाद let go नहीं कर पाता हूँ। Yeah, so I am not somebody who lets go very easily. ये मेरा प्रॉब्लम रहा है। But yes, I agree with you कि आपको आगे बढ़ने के लिए पास्ट को छोड़ना पड़ता है। Like you cannot be tied to a pole and want to run. So, but yeah, वो मेरी shortcoming है that I can't let go very easily. You feel it is your shortcoming, या आपको लगता है कि that's what I'm asking, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज जानना चाहते हैं through our mediums also कि आगे बढ़ने का प्रॉपर फंडा क्या है। अगर एक बहुत बुरा टाइम गया है या बहुत बुरा हुआ है, बहुत लोगों ने बुरा कर दिया है, लेट गो कर पाना या करना, दोनों दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपको लगता है लेट गो करने से सच में चेंजेस आते हैं? Yeah, I believe in it, yes. Okay. Because हमारे experiences में when we do lot of healings regarding let going of the past, there are new opportunities, new people in fact coming your way because we replace the energies. We are stuck with the past. इसीलिए मैंने आपसे पूछा। आपकी बिग बॉस जर्नी के बाद में आपको अब कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है? यू गेटिंग लॉट ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज व्हिच वी ऑल कैन सी, but what do you feel as a personality difference? Have you like completely changed as a person, thought process mein, ya you're similarly like you're the same person on those lines? No, I am changing a lot. You know, as they say that destruction is the beginning of construction. So right now I'm in that destruction mode. मैं जब बिग बॉस में गया था, मैं बहुत ही इमोशनल इंसान था। मैं बहुत ज्यादा वेटेज दोस्तियों को, रिश्तों को देता था। मैं बहुत करेक्ट और रॉन्ग और राइट में बिलीव करता था। मैं मेरे कुछ मॉरल्स थे जिन पे मैं नहीं हिला, इवन दो आई हैड 1500 रुपीज इन माई अकाउंट व्हेन आई एंटर्ड बिग बॉस, पर मैं नहीं हिला इन सब चीजों से। और अब मुझे लगता है कि शायद वो सब गलत था, बिकॉज बिग बॉस जैसे शो में आगे जाने के लिए आपको रिश्तों को पीछे रखना पड़ता है, आपको इमोशंस को पीछे रखना पड़ता है, आपको अपना फायदा देखना पड़ता है, आपको स्मार्ट और शाना होना पड़ता है, मैनिपुलेटिव होना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम शो। विद द पास्ट, इसीलिए मैंने आपसे पूछा आपकी बिग बॉस जर्नी के बाद में आपको अब कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है? यू गेटिंग लॉट ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज व्हिच वी ऑल कैन सी, but what do you feel as a personality difference? Have you like completely changed as a person, thought process mein, ya you're similarly like you're the same person on those lines? No, I am changing a lot. You know, as they say that destruction is the beginning of construction. So right now I'm in that destruction mode. मैं जब बिग बॉस में गया था, मैं बहुत ही इमोशनल इंसान था। मैं बहुत ज्यादा वेटेज दोस्तियों को, रिश्तों को देता था। मैं बहुत करेक्ट और रॉन्ग और राइट में बिलीव करता था। मैं मेरे कुछ मॉरल्स थे जिन पे मैं नहीं हिला, इवन दो आई हैड 1500 रुपीज इन माई अकाउंट व्हेन आई एंटर्ड बिग बॉस, पर मैं नहीं हिला इन सब चीजों से। और अब मुझे लगता है कि शायद वो सब गलत था, बिकॉज बिग बॉस जैसे शो में आगे जाने के लिए आपको रिश्तों को पीछे रखना पड़ता है, आपको इमोशंस को पीछे रखना पड़ता है, आपको अपना फायदा देखना पड़ता है, आपको स्मार्ट और शाना होना पड़ता है, मैनिपुलेटिव होना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम शो। सो yes, I am going through a lot of changes as we speak. मैं पहले बहुत नाइव और मासूम था, अब मैं नहीं रहना।
so I am internally, externally, there are a lot of changes, at least in my case, that I'm experiencing. And I think कोई भी experience, चाहे वो Big Boss हो या कोई छोटा सा भी show हो, कुछ भी हो, it does definitely change you. Yes, absolutely. वो changes अगर good के लिए हैं, obviously एक experience के बाद I think we all evolve. इसे human growth कहते हैं कि हमें दोनों चीजें balance करनी आए, inner world and the outer world. One last question from you, शार्दुल. अगर आपकी audience जानना चाहती है कि वो ऐसी क्या फंडा है या motivation है within you कि सब कुछ बुरा हो रहा है या सब कुछ imbalance होते हुए भी I will keep on going, I won't surrender. What do you think in your case it is? My mother, I think. जिस फेज से मैं निकला था या जिस फेज से मैं निकल रहा हूँ, I would have given up long back, but I totally believe in it that I think the only debt on us as a human being is the death of birth, जो आपकी माँ आपको देती हैं, जन्म देती हैं. I think मैं सबसे ज़्यादा responsible कोई भी इंसान उनके लिए होता है, because she goes through a lot of pain to bring you in this world. So I think I'm only continuing, or I've continued in the past. जब ऐसे भी situations थे वह मुझे लगता था कि मुझे अगला दिन देखना नहीं है, मुझे अगला पल देखना नहीं है, तब भी it's my mom जिनका ख्याल मुझे आता था, और कुछ रिश्ते. I think मेरा ये मानना है कि I mean, ये term शायद सबको समझ में आए ना आए, but in your human experience, the only thing जो आप जिसके लिए आप आते हो वो है लेन और देन of relationships. So I think everybody has some certain relationships कि आप खुद के लिए नहीं जी सकते हो, खुद के लिए नहीं आप अपने आप को कुछ कर सकते हो, because you're linked to a lot of people. So it's my mom, my sister, and my nephew that I think it keeps me going. Mom, it's a duty. Nephew's face is just a positivity ka injection for me. So yeah, these three people and my bond with them. Bond with them, definitely, because ये जरूरी है. रिश्तों की importance यहाँ भी ये prove होता है कि अगर हम relationships की importance रखें, अपने ही बारे में ना सोचें, तो हम एक अजीब से वक्त को भी आगे निकल के face कर सकते हैं. Correct. Right? It was really inspiring to know your journey, your mindsets and belief, and मैं चाहूँगी कि लोग जो देखें उससे inspire हो. Also, I will, meditate and pray for your mom definitely to get out of this situation and to be healthy and fit very, very soon. Thank you that you asked these questions, because it was different from what I think about Big Boss contestants. So yeah, thank you. Thank you so much, Shardul, and definitely बहुत जल्दी मैं ये भी चाहूँगी कि आप और outshine करें, because आपके thoughts इतने inspiring हैं. You are a very practical person as well as a very loving soul. But definitely the blend of two balance अगर होता है तो बहुत ज़्यादा आगे career और future बहुत bright है, definitely.